Good evening and welcome to this special broadcast right here on NDTV. It's the battle for the capital. No, not New Delhi, but the political capital. The road to Delhi goes from Lucknow. It's a very, very important state, and today the capital of Uttar Pradesh voted. 4 phases down, 3 more to go. More than half the election in Uttar Pradesh is over. Which way is the wind blowing? Also, very, very importantly, so far one was given to believe that this is a bipolar contest. Samajwadi Party versus the BJP. But of all people, the BJP is now saying no, BSP is also in the mix. What is the meaning of this? How should one read this? Is this a 3-way contest? Is the BSP, which has been battling allegations of being a B team of the BJP, for real? Why else is the BJP batting for them? Elections are turning out to be very, very interesting as we are shifting gears and moving in top speed. The young at heart and the young of Lucknow are now going to join us to debate this further. Let me introduce them one by one. Aastha Tiwari, spokesperson of the UP Congress. Thank you very much. Syed Raj Hussain Rana is a BJP leader and media coordinator of the BJP UP Minority Cell. Thank you very much, Rana ji. Faizan Khan, spokesperson of the BSP. Miraj Haider, Samajwadi Party leader and also a hardcore supporter of Akhilesh Yadav. Thank you very much for joining us. Ayush, a first-time voter in Lucknow. He'll have a lot to say because where is his vote and his mind? And the youngest man in Uttar Pradesh, the youngest at heart, Sharad ji, who has seen it all and is still young in the heart. Thank you very much, Sharad ji, for joining us. Sorry? Hope to continue remaining young. Yes, absolutely. Okay, let's begin. Let me start by asking you, right? The young at heart and then the youngest. Great. This latest BSP, SP, BJP 3-way contest, Amit Shah saying BSP is also in the mix. How do you read this? Coming so late in the day that BJP, it's not realization dawning on BJP that BSP is there. But I think it is done with a strategy. So far, they had themselves been projecting that this election is bipolar, which meant that it was between BJP and Samajwadi Party. Now, a little late in the day, they have realized that this is going against them. Because the first 3 phrases, as one believes, did not go with the BJP. There was a major challenge for them to retain even 50% of the seats that went to poll. Now this 4th poll is going to be very decisive, the 4th phase. So I think it's just time enough they have started. This is to confuse people, to tell them, look here, BSP is also there. This may also help them to override this common impression, overwhelm people with this that BSP is BJP's B team, which everybody believes. So this will be counterproductive for the BSP, according to you? This will be counterproductive both for the BSP as well as for BJP. Okay. Because people at the end of the day understand why this is being stated now. लखनऊ के दिल में क्या है? आज यहाँ मतदान हुआ है. आइए बात करने के लिए लखनऊ के जो यूथ हैं, जो जवान हैं, दिल से भी जवान हैं और यूथ भी हैं, उनसे बात करते हैं. सबसे पहले आयुष, फर्स्ट टाइम वोटर, क्या मुद्दे थे आपके लिए जब आपने वोट डाला? मेरे लिए पहला मुद्दा ये था डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट कॉज. आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूथ के लिए. पहली चीज़ कि लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है यूपी में, विच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और शायद उसके वजह मतलब बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा? हाँ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे क्या कहते हैं यूथ जो है माइग्रेट कर जा रही है अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ में, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा. पर आयुष, आज से थोड़ी माइग्रेट कर रही हो, तो बहुत टाइम से कर रही है, तो चुनावी मुद्दा आपके लिए अब क्यों है? मेरे लिए मुद्दा इसलिए है क्योंकि क्या कहते हैं आने वाले टाइम में अब जो अपकमिंग गवर्नमेंट है उसकी ये पोज होने चाहिए. जैसे कि पिछले उन्होंने टाइम में उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, राम मंदिर, गोरखपुर इंटरनेशनल स्टेशन, तो उनका अपकमिंग जो होना चाहिए उनका यही होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने राम मंदिर पे किया और ये सब किया, तो नेक्स्ट टाइम उनका मेरे हिसाब से वही होना चाहिए. डेवलपमेंट फॉर इन द IT सेक्टर एंड ऑल. फैजान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ. शरद प्रधान जी का ये मानना है कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये बसपा के लिए. ये जो आपको नया समर्थन मिला है ना अभी भाजपा की तरफ से कि भाई वो भी मुकाबले में है, मुसलमान भी वोट डाल रहे हैं बसपा को, जितना आप खुश हो रहे हैं इससे ज़्यादा एक छवि भी ये बन रही है कि वाकई बसपा जो है वो बी टीम है बीजेपी की. नहीं, देखिए, अमित शाह जी ने के मुंह से मैं कहूँगा कि जो सच निकला है वो आधा अधूरा है.
पूरा सच वो नहीं बोल पाए, आधा सच उन्होंने बोला कि मुस्लिम्स और दलित सब लोग वोट कर रहे हैं बसपा को, पर पूरा सच ये है कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता इस वक्त, हम सारे वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो और मुसलमान अल्पसंख्यक को खास तौर से, और अपर कास्ट में भी ब्राह्मण समाज हमारे साथ खड़ा है। ये देखते हुए नज़ारा जब 4 पोल हो गया, 3 पोल के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो जाहिर सी बात है वो भी ये मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का आप स्टेटमेंट, उनके स्टेटमेंट का स्वागत करते हैं? नहीं, स्टेटमेंट का इस सच्चाई का स्वागत करते हैं। यही तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब ये जो एक छवि ये जाएगी कि अब तक ये बोला गया कि बसपा जो है वो बी टीम है, अब ये बी टीम वाली बात को और बढ़ावा नहीं मिलेगा? अब देखिए, आपकी पैरवी अमित शाह कर रहे हैं। देखिए हमारी पैरवी नहीं, ये सच्चाई 5वें चरण तक देख लीजिएगा, अखिलेश यादव जी भी बोल देंगे बसपा आ रही है। क्या बोल देंगे? बसपा आ रही है, अब वही बताइए, हैं? क्या बोलेंगे? अब बेचारे अखिलेश जी जो भी टीम भी है है। पूरे प्रदेश में वो बस लिए डोल रहे हैं। देखिए ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि ये लोगों ने 4 बार मिलकर के सरकार बनाई है भाजपा के साथ, तो बी टीम तो है ही, वो तो सब जानते हैं। चौथी बार बनाने जा रही हो सकता है, अगर उनको जरूरत पड़ी तो चौथी बार। अगर ऐसा होता तो 2019 में हम इनके साथ गठबंधन नहीं करते। 2019 में अगर ऐसा मानसिकता हमारा रहता तो हम इनके साथ गठबंधन नहीं करते, हम भाजपा के साथ उस वक्त भी जा सकते थे। तो ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है वोट को डिवाइड करने के लिए, जनता बखूबी इस बात को समझ रही है। अच्छा राणा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जो बसपा वाली बात हो रही है, इस पे आपका स्टैंड क्या है? मुसलमान भारी मात्रा में बसपा की ओर जा रहा है? नहीं, जैसे अभी मेरे मित्र ने बताया, बड़े भाई ने मेरे कहा कि इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि बसपा के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में सरकार बना रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया आपका। देखिए इस टाइम पे जो माहौल बना, अखिलेश जी 400 दे रहे हैं, आपने गठबंधन में अगले इन्हें पहले ही क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर जरूरत पड़ी, मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा आप बहुमत की सरकार नहीं बना रहे, इसका मतलब मैंने कहा अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि पिछली 3 बार भी आप ऐसा कर चुके हैं। धन्यवाद आपका संकेत जी। इस टाइम उत्तर प्रदेश का माहौल इतना अच्छा पहली बार है कि पहली बार कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो खुलेआम नहीं सामने कह पा रहे हैं, लेकिन लोगों से एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है। ऐसा इतिहास में पहली बार आया कि दूसरी पार्टी के नेता खुल के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। अब मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ आस्था जी आपसे, आपको क्या लगता है? देखिए 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 3 और बाकी हैं, ठीक है? इसके बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे। क्या हवा का अंदाजा है आपके हिसाब से? पश्चिम से ये जो हवा चल रही है वो किस दिशा में चल रही है? देखिए पश्चिम से जो हवा चल रही है, मुझे लगता है कि इन सब की उसके बाद हवा बदलने वाली है और कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, अब वो हंस दिए राणा जी इस बात पे, देखिए हंस ले दीजिए उनको। जो सच बोलता है उसका हमेशा मजाक बनाया जाता है। अरे अभी कल मैंने एक बड़ी आइंस्टीन का एक कोट पढ़ा कि जो पॉपुलर ज्यादा होता है वो सच हो, ये जरूरी नहीं है, सच अनपॉपुलर भी हो सकता है, ठीक है? तो दूसरी चीज जैसे कि टीम में दिखे ही नहीं, पूरे चुनाव में राहुल आ गांधी रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ आ रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल कहाँ है? गांधी चाय पी के आ लेटे रहे हैं, हैं, वो आए यूपी आ रहे हैं राहुल गांधी, ठीक है? पूरे इन्होंने उत्तर सच प्रदेश कहा, में केरला में आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी दिखे नहीं। उनको पता है वो 2 बार हार चुके हैं। इतिहास राहुल गांधी जी ने रचा हारने का, मैं बोल लूं? हारने का इतिहास रचा है राहुल गांधी जी ने। देखिए जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इस कहानी का भी 2 पहलू है। एक पहलू ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो उनको ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि बस मुसलमानों का वोट बसपा को जा रहा है। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों का वोट भाजपा को जा रहा है। दूसरा पहलू ये है कि मायावती जी किस बेसिस पर किसी भी समुदाय से वोट मांगती हैं, ठीक है? किसी भी बेसिस पर वो किसी भी समुदाय से वोट मांगेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल हो या कभी भी हो, कभी भी किसी ने नहीं देखा कि मायावती किसी भी गरीब की, दलित की, मुसलमान की या किसी भी शोषित व्यक्ति के साथ उसके संघर्ष में खड़ी दिखाई। बताइए अब ये देख लीजिए, अभी उन्नाव 2 हुआ कांड जो है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने परिवार से उनकी मिला और पूरी तरीके से दोबारा ट्वीट करके शासन पे दबाव बनाया। नहीं, ये ट्वीट काफी है। नहीं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रियंका गांधी जी के लिए एग्जाम अभी आया है? 5 साल पढ़ाई नहीं किया उन्होंने? प्रियंका गांधी जी आपकी कब दिखी चुनाव से पहले? ये आरोप लगा देना, हम तो हमेशा लगातार बने हुए। उन्नाव कौन गया, लखीमपुर कौन गया, सीतापुर कौन गया? शो करने के लिए गए, शोबाजी के लिए गए। दूसरी बात, अमित शाह जी का ट्वीट, एक वाक्य आपने बताया बसपा पे, लेकिन अब वो आप एक एक करके आप यूथ जनरेशन को बता रहे, लेकिन अमित शाह जी का सबसे हास्य पद बात तो आपने बताई नहीं लोगों को। क्या जो उन्होंने कहा 12वीं पास करके इंटर में जो दाखिला लेगा उसका वो जो है लैपटॉप देंगे।
दूसरा उन्होंने एक और वाक्य बताया, 86 लाख कहते कहते इंग्लिश जब बोले तो उसे 46 लाख बता दिए। तो ये यूथ समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को कहाँ लेके जाएगा, राणा जी को लेके कहाँ जाएगा। सारा सामने आया। देखिए, इन लोगों के पास मोदी कोई जी और- 24 घंटे सोते हैं बोल रहे थे अमित शाह जी। देखिए, इन लोगों के पास कोई और बात तो रह नहीं गई है। है। देखिए बहन, जब भाई ऐसा एक सेकंड एक अकेले राणा जी हैं बीजेपी से, उनको राइट टू रिप्लाई दो, वो आरोप लगा देंगे कि बायस हो गया। देखिए बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास रहा है, ये मेरे भाई जानते हैं कि वो कभी किसी गरीब के घर गई, ना किसी कार्यकर्ता के घर गई। ये भी अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये बसपा पे अभी शरद जी भी कह रहे थे, शरद जी ये बड़ा रोचक है, एकाएक चौथे चरण से पहले बसपा की बात भाजपा द्वारा, सबको पता चल नहीं, ये इसके मायने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो भाजपा जब ये बात करती है, इससे जाहिर है कि वो लोगों को कंफ्यूज करना चाह रही है। पहले खुद ही बोलते थे कि बाइपोलर इलेक्शन। दूसरी बात, भाजपा एक और इंटरेस्टिंग बात कर चुकी है। ये जो अभी बात फैल रही है ना मुसलमानों के वोट को लेकर के, अमित शाह कह रहे हैं कि वो उनको भी पड़ रहा है, बसपा को भी मिल रहा है। वो तो अपने लिए अपील करवा चुके हैं। यहाँ के एक बड़े मशहूर मौलाना हैं, उन्होंने अपील करी है कि लोग मुसलमान उनको बस भाजपा को वोट दें। अब वो किन वजहों से करते हैं ये सबको मालूम है, लेकिन इससे दिख रहा है कि भाजपा के अंदर ये एहसास बैठ गया है कि जमीन खिसक रही है कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो डेस्परेशन दिखाता है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, देखिए अब जो है, अब पहले वाले चुनाव में एक मुस्लिम फैक्टर था, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहाँ हिंदू मुसलमान भी हुआ, वहाँ दुनिया जहाँ की चीजें हुई, बेरोजगारी की भी, सांड की भी बात हुई, सब कुछ हुआ, हिजाब की भी बात हुई। लेकिन अब जो चुनाव है, यहाँ पर ओबीसी फैक्टर चरम पर आएगा, यहाँ पर ब्राह्मण फैक्टर चरम पर आएगा। इन सब चीजों में भाजपा अपने आप को कहाँ पाती? देखिए, कोई फैक्टर यहाँ पे काम नहीं आएगा। इस टाइम उत्तर प्रदेश की जनता को विकास दिख रहा है, उत्तर प्रदेश जनता को गुंडा राज खत्म होता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को ये ढोंगी लोगों का हटाना है पूरी तरीके से। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि वो मुसलमान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे चुका है, और फुल बहुमत से 10 मार्च को आप फिर यहाँ पे एक बार डिबेट कराइएगा, हम लोग सबसे बात करेंगे और 10 मार्च को रिजल्ट। ये देखिए, एक चीज जो बात हो रही है वो ये है, एक आदमी कह रहा है मैंने लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिया, दूसरी बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि दोनों की बात एक नेता क्यों नहीं कर सकता? देखिए ऐसा क्यों है कि एक एक छोर पकड़े हुए हैं? देखिए, दोनों की बात कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को जनता का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी जिस विकास की बात ये लोग कर रहे थे, मैं उस विकास के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ कि जब विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी अखबारों में छपवाती है तो उसको बिल्डिंगें और पुल कोलकाता से व अन्य देशों से उधार मांगने पड़ते हैं। तो हकीकत है कि विकास कैसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और दूसरी बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि जैसे 12वीं के बाद इंटर युवा कंफ्यूजन में है कि उसको शादी के बाद ब्याह न करना पड़ जाए। अगर उर्दू के लफ्ज में शादी हुई तो योगी आदित्यनाथ के राज में वो भी मुमकिन है कि ब्याह फिर से करना पड़ जाए। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ संकेत, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो बीजेपी जो है और खासतौर से योगी आदित्यनाथ, वो ऐसे नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं जो उनकी कमजोरी है पार्टी की, उन चीजों पे जरूर बोलते हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर इसको रामराज्य माना जाए कि उन्नाव में कांड हो गया, क्या बड़ी अच्छी बात है, तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है। हर हाथरस में जो हुआ उसको भी ये लॉ एंड ऑर्डर मानते हैं। जो गोरखपुर में हुआ, जहाँ एक यंग लड़के को पीट के मार डाला और बड़ा खास आदमी था, चीफ मिनिस्टर। But you know, Sharad ji, the perception, politics is a battle of perception. My point is that in the world of politics of perception, has the BJP succeeded in sending the message out कि भाई उन्होंने law and order जमीन पे फिक्स किया? BJP excels in the art of spreading falsehood and they bombard you. वो इतने झूठ से, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की बात जो है वो झूठ है, वो मुझे लगता है मार्केटिंग है, मार्केटिंग है। उन्नाव कांडो, हाथरस हो, गोरखपुर हो, लेकिन कासगंज में खुद गया था रिप्रेजेंटेशन बन के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 2.5 फीट। बताइए 3 सालों में मैं बता दूं आपको 24 पुलिस हिरासत में मौतें होती हैं। ये है इनका, ये है लॉ एंड ऑर्डर। महिलाओं की सुरक्षा नहीं, किसी का। मेरा बस ये कहना है, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर एक छवि बीजेपी बना रही है तो ये आप एक तरीके की विफलता नहीं मानते हैं कि वो छवि जो है वो जनता में बनती चली गई? अगर ये छवि है
तो अगर क्या वो समाजवादी से टक्कर है, समाजवादी से टक्कर है तब छवि बन जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के सामने हैसियत नहीं है, क्योंकि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित बहुजन समाज पार्टी ने किया। उत्तर प्रदेश का बच्चा था, हमने अपने टक्कर ही नहीं है, क्योंकि वो तो साथ में ही है। गांव गांव में संदेश ये है कि कोरोना की वजह से बहुत बुरी हालत हुई। 2 साल तो कोरोना काल के नहीं, लेकिन वो क्या उसको बहाने की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी? बहाना इन लोग बनाते हैं। इन्होंने 10 साल 5 साल क्या काम किया पता है, इन्होंने क्या क्या सब पता है, और इसी वजह सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं और ना दोबारा आ पाएंगे। अभी 10 मार्च को सबको मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे देंगे। कैसे देंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पर कैसे? युवा देगा, ये जुआ देगा, जनता देगी। ये युवाओं को ठगने का काम करते हैं। ये जॉब्स निकालते हैं, उसके नाम पे फीस लेते हैं और फिर वो कैंसिल हो जाती हैं। ये जवाब देंगे 10 मार्च को पुलिस लाइन के पीछे माफियाओं को क्रिकेट खेलते हुए जवाब देंगे। कैसे जवाब देंगे? आप क्या बता रहे हो? कांड कराएंगे, आप क्या बता रहे हो? कांड कराएंगे, आप क्या कांड हुए? कितने घोटाले किए बहन जी ने, बाबू सिंह कुशवाहा ने कितने घोटाले किए? आप भूल गए 10 साल से आप सत्ता ही में नहीं हो। आप 10 साल से सत्ता में एक एक करके सभ्य बहस प्लीज। अच्छा सुनिए, क्या नहीं किया? एक डिसेंट डिबेट होगी, एक डिसेंट, वरना आप क्या है, आप दोनों बोलते रहेंगे ना, उनको आपकी बात समझ में आएगी ना आपको उनकी। एक एक करके। हाँ, मेरा मानना ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हर हमेशा बहुत खराब रही है यूपी में। फर्क पहले में और अब में ये है कि पहले इफ क्रिमिनल्स हैड अ फ्री रन कंसीडर्ड, बट टुडे दे गेट पेट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज मोर डेंजरस। ये इसका आप जवाब कैसे देंगे कि पहले तो उनका सवाल ये है कि पहले क्रिमिनल जो हैं, जो जितने भी हाँ, उनको खुली छूट थी, ठीक है, लेकिन इस सरकार में उनको सरकार का संरक्षण है, प्रोटेक्शन है। सेलेक्टिव अप्रोच है, सेलेक्टिव अप्रोच है। एक जाति में चलिए मैं आपको एक सवाल पूछ दूं। टेनी लखीमपुर में आज, हाँ, लखीमपुर में आज चुनाव हुआ। आप गुंडे मुसलमान था क्या? आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बहुत वरिष्ठ हैं। टेनी वो देखिए, वो कह रहे हैं भैया किसान के बेटे ने पूछी, वो मंत्री पूछता, उनको कुछ नहीं होगा। बच्चे छोटे छोटे शिक्षा से वंचित रह जा रहे कोरोना में। बताइए। आप बहुत वरिष्ठ हैं। टेनी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जेल गया वो, उसको कोर्ट ने स्लिप दिया गया, वो जेल गया। टेनी का लड़का जेल गया। कैसी बात कर रहे हैं? जेल से बाहर है, कैसी बात कर रहे हैं? जेल से जमानत लच्चर पर भी कोर्ट ने जमानत दी। भारतीय जनता पार्टी ने लच्चर पर भी की। भारतीय जनता पार्टी जमानत दे देगी। एक बात बता दो, राम मंदिर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी जमानत दे देगी। राम मंदिर किसने बनाया? बोलिए, कोर्ट ने बनाया। तो जो चीज हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है कानून के फ्रंट पर, वो कोर्ट के आदेश से हो रही है, वो कोर्ट की वजह से हो रही है। भाई उनके टेनी का लड़का जो जेल गया, आना पड़ता है। इनके यहाँ कार्रवाई तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिलाता है, वरना नहीं। विदाउट ये लोग नहीं लेते। जब इंटरफेयर करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तब कार्रवाई होती है। वो भी टहनी के केस में मैं बता दूं, 4 किसान जो विपक्ष में क्रॉस एफआईआर में, वो अभी भी जेल में बंद है, और टहनी के सुपुत्र बाहर आ गए 4 महीने में। ये कैसा इंसाफ है? बताइए जवाब। देखिए वो जेल गए, ठीक है, उनको कोर्ट ने जमानत दी, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने हिंदू मुसलमान कह दिया कि भाई योगी जी ने क्या कहा, सारे मुसलमानों को जेल आप लोग नाम लेते हैं, सिर्फ समुदाय का नाम लेते हैं माफिया में, बाकी समुदाय के माफिया नहीं होते पड़ते। माफियाओं का लिस्ट क्यों नहीं निकालती भारतीय जनता पार्टी? मैं जैसा कह रहा था कि इसमें सेलेक्टिव अप्रोच है। खुशी दुबे जो जेल के अंदर है, उसका क्या कसूर था? और धनंजय सिंह क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर रहे हैं, ये कैसे? उत्तर प्रदेश में एक संप्रदाय विशेष के जितने भी माफिया है, वो सत्ता का संरक्षण उनको मिला हुआ है, और सिर्फ और वो बीएसपी। एक सेकंड, शांत, एक सेकंड, माहौल प्लीज शांत हो जाए। मैं आप लोगों से बस एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जनता को बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि पहली बार गांव-गांव में देखने को मिला है कि बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा बना है। शरद जी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि ये कारण बनेगा सत्ता परिवर्तन का? देखिए, जनता इस बार बहुत शांत है, और जब जनता शांत होती है तो वो चिंतन कर रही है। शांत तो नहीं है, कितना शोर मचा रही है। जब चिंतन करती है, मनन करती है, वोटर शांत है। इस बार सोच समझ के वोट दे रहा है, मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है, और ये गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है। ये गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है। भूमि दरवाजा और सचिन गुप्ता दिखाएंगे, वो देखिए गंगा जमुनी तहजीब का ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है। और ये जब बन रहा था
तो आसिफुद्दौला जी ने रोजगार देने का काम किया था। यहाँ अकाल पड़ा था, रात में दिन में बनता था, रात में तोड़ दिया जाता था, ताकि लोगों का जमीन न मरे, लोगों को रोजगार मिल सके। आज इस बार पर चुनाव होने जा रहा है और मुद्दा जो है रोजगार का है और गंगा जमुनी तहजीब को बचाने का है। और जनता कह चुकी है कि इन गंगा जमुनी तहजीब को, लखनऊ कह चुका है, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म होने ना दें। पर मेरा सवाल अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, एक तो होता है कि मुझे बहुत गुस्सा है सरकार से, बहुत मेरी शिकायतें हैं, बहुत परेशानियां हैं, और एक होता है कि मैं इतना गुस्सा हूं कि मैं किसी और को वोट दे दूं। आपको लगता है कि ये होगा? क्या गुस्सा आपके हक में वोट में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस वक्त युवाओं को रोजगार चाहिए है, उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए है। आप देखिए पिछले 5 साल में कि उत्तर प्रदेश विकास की पटरी से पिछड़ा अलग उतर चुका है। यहाँ के ऊपर सिर्फ गुंडा राज है। आप एनसीआरबी के डेटा उठाइए तो उसमें जबकि एफआईआर दर्ज नहीं होती है क्राइम होने के बावजूद, उसके बाद करीब 35% की वृद्धि हुई है। गुस्सा इस तरह से है। मेरा सवाल, एक सेकंड, मेरा सवाल फिर से वही, 4 चरण हो चुके हैं, 3 और बचे हैं। आपको लगता है कि गुस्सा वोट में तब्दील हो सकता है? ये 2 एकदम अलग अलग चीज है, हमने इतिहास में भी देखा है। गुस्सा युवाओं में इस कदर है कि जब वो जा रहे हैं ईवीएम मशीन पे तो कमल का निशान देके आंख बंद कर ले रहे हैं। आपको किसने बताया? ये रोजगार, बेरोजगारी जो आपने कहा ना, बेरोजगारी इस कदर है, बेरोजगारी इस कदर है। बेरोजगारी में एक चीज बताना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फिगर्स हैं बेरोजगारी की, ये जो कोरोना का बहाना लेती है बीजेपी, कोरोना शुरू होने से पहले एम्प्लॉयमेंट कई 2 करोड़ कम हो चुका था। राणा जी का जवाब, राणा जी सवाल यही है, इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि न केवल गुस्सा है और रोष है, लेकिन वो रोष जो है वो ईवीएम से भी निकलेगा। देखिए अभी इन्होंने कहा कि लोग कमल का फूल देख के आंखें बंद कर लेने, बहुत अच्छी बात है। इन्हें कमल का बटन दबा के, कमल का देख के वो बटन दबा रहे कमल का। अभी इन्होंने कहा बहन जी जो है, खुद हमारी बहन कुमारी मायावती जी परेशान है कि बीजेपी हमें हाथ दे। अरे बेरोजगारी भी, बहन जी परेशान है कि बीजेपी हमको थोड़ी सी लिफ्ट दे दे। हर घर में एक बेरोजगार है आज की स्थिति है। गरीबी, नीति आयोग की रिपोर्ट है, गरीबी रेखा में ला दिए, किसानों की शहादत हो गई। ओके, लास्ट कमेंट। मेरा सवाल दोबारा से, आपको लगता है कि जनता का जो रोष है, जो कि यहाँ पर अभी दिख भी रहा है, वो वोट में तब्दील होगा? वोट में तब्दील हो चुका है, क्योंकि 4 चरण ऑलरेडी बीत चुके हैं और 3 चरण में भी जनता अपना गुस्सा वोट में बदलने जा रही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा का जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात में दिखाया, कोयला घोटाला आज निकला है उनके यहाँ से कि 60 लाख टन कोयला गायब हो गया। ये गुजरात मॉडल जिसके दम पर ये सरकार बनाते थे। और भाजपा के रॉबर्ट्सगंज के विधायक आज जनता के सामने माफी मांग रहे थे, उठा बैठक लगा रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के विकास की हकीकत है। और ये जो राशन दे रहे हैं, एक विधायिका यहाँ तक कह रही है कि राशन हमसे ले रहे हो, वोट नहीं दोगे, धमकी भरा। मतलब ये राशन दे रहे हो, धमकी दे रहे हो भैया, गरीबों का मजाक उड़ा। अब ये देखना होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधे से ज्यादा मतदान खत्म हो गया है और अभी थोड़ा सा और बाकी है। 231 सीटें हो गई, कुछ और बाकी हैं। क्या है यूपी के दिल में? क्या रोष वोट में बदल सकता है और क्या वो वोट चोट मार सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट।